Hello students, we were discussing about ecosystem and its structure, and I have already told you regarding the ecosystem. It is an interaction between living things among themselves and with the surrounding environment. This uh, term ecosystem was coined by Stanley, and normally it is of two types, terrestrial and aquatic, and I had told you regarding the structure of ecosystem that it has both biotic and abiotic factors which interact with each other, and various stratification is the vertical distribution of different species occupying different levels. For example, trees occupies higher level as compared with shrubs, and the other aspects of uh, ecosystem are productivity, decomposition, energy flow, and nutrient cycle. Regarding productivity and decomposition, I have already told you in the previous video. Today we will discuss the energy flow. Students, sun is the ultimate source of energy in this universe, in this biosphere, and plants and other photosynthetic organisms, they utilize less than 50% of the solar radiations, known as photosynthetically active radiations, or in short they are abbreviated as PAR, photosynthetically active radiations. Only 50% of solar energy is utilized by the plants. In ecosystem we find different organisms, and they are biologically named differently. Those organisms which produce, or those organisms which manufacture their own food material in the presence of chlorophyll with the help of sunlight is known as, are known as producers. For example, green plants are producers. Similarly, herbivores are those animals which directly feed upon producers, and they are also known as consumers, or we can say primary consumers, which are directly feed upon herbivores, and herbivores directly feed upon autotrophs or green plants. There are certain animals which feed upon herbivores, or you can say there are some animals which feed upon primary consumers. They are known as secondary consumers, and there are also third level consumers which feed upon lower level of consumers. They are known as tertiary consumers. Now with example you can understand. We can say that goat, or we can say rabbit is a primary consumer. Then we can say wild dog can be a secondary consumer, and wild dog is attacked by the tiger, then we can say tiger is the tertiary consumer, or it is also known as carnivores. We belong to omnivores, which feed upon both herbs as well as flesh of other animals. So in animals we have consumers, herbivores, primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers, and tertiary consumers are also known as carnivores, and there are some animals which are known as omnivores, including weasel. How the energy flow you might have read it in 10th class. There is a link between the different organisms in which the energy flows from one organism to another organism. That link is known as food chain. For example, energy, solar energy is trapped by the green plants. Green plants are eaten by rat. Green plants are the product of, then rat is eaten by the snake, and snake is eaten by the eagle.
So this sequence is known as a food chain, and the food transfers in unidirection, in only one direction. So energy flow takes place in this way, and this relationship is known as food chain. Now in the biosphere, a top carnivorous is linked with more than one food chain. जैसे हम कहते हैं कि ईगल ने सांप को खाया, सांप ने रैट को खाया, रैट ने ग्रास को खाया, ग्रास में वो एनर्जी सन से आई, ये एक लिंक हो गया। तो अब ईगल के साथ, ईगल टॉप जो है कार्निवोर है, अब ईगल रैबिट को भी तो खाएगा। अब ईगल स्नेक के साथ भी जुड़ा था, ईगल जो है वो रैबिट के साथ, रैबिट जो है ग्रास के साथ। इसी तरह ईगल पिजन के साथ भी जुड़ा, पिजन जो है वो ग्रास के साथ। तो एक सिंगल टॉप कार्निवोर्स जब एक से ज़्यादा फूड चेन्स के साथ लिंक्ड हो, दैट इज़ नोन एज फूड वेब। फूड चेन में सिंगल चेन होती है और फूड वेब में बहुत सी मोर देन 2 फूड चेन्स होती हैं जो टॉप क्लास के कार्निवोर्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और ईच स्टेप इन द फूड चेन इज़ नोन एज ट्रॉपिक लेवल। इनको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। देन कम स्टैंडिंग क्रॉप। ईच ट्रॉपिक लेवल कंटेन्स सर्टन अमाउंट ऑफ लिविंग मटीरियल एट ए सर्टन टाइम नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। हर एक ट्रॉपिक लेवल में कुछ लिविंग मटेरियल होता है कुछ सर्टन टाइम पे, और उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन द फूड चेन इज़ रिस्ट्रिक्टेड। एक लिंडेमैन 10% लॉ है, वो ये कहता है कि ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। सपोज हम कहते हैं कि 10 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो सन से एब्जॉर्ब हुई प्लांट में। जब प्लांट को हर्बीवोर ने खाया तो 10 का 10% हो गया 1 जूल। 1 जूल एनर्जी जो है वो हर्बीवोर में जाएगी, मीन्स रैट में 1 जूल ऑफ एनर्जी जाएगी। अब रैट को स्नेक ने खाया तो 1 जूल का 10%, दैट इज़ 1/10, दैट इज़ 0.1% जो है वो एनर्जी जो है वो स्नेक में गई। अब स्नेक को बाज ने खाया या ईगल ने खाया तो 0.1 का 10%, दैट इज़ 1/100, 0.01% जो है एनर्जी पहुंची टॉप क्लास के कार्निवोर में। तो जितनी ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल होंगी उतनी टॉप क्लास के ऑर्गेनिज्म को एनर्जी कम मिलती है, लेकिन वो कंपनसेट कैसे करता है? टॉप क्लास का ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा फूड चेन्स के साथ लिंक्ड होता है, इसलिए नेचर में फूड चेन जो है उसकी ट्रॉपिक लेवल्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, नॉट मोर देन 6 और 7, इससे ज़्यादा इसकी लेवल्स नहीं होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल्स होंगी उतनी कम एनर्जी टॉप क्लास के ऑर्गेनिज्म को मिलेगी। नाउ व्हाट इज़ इकोलॉजिकल पायरामिड्स? एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द इकोलॉजिकल पायरामिड्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हम डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उसको हम इकोलॉजिकल पायरामिड कहते हैं। इनकी बेस रिप्रेजेंट करती है प्रोड्यूसर और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, वाइल द एपेक्स जो है रिप्रेजेंट करता है टर्शरी और टॉप लेवल कंज्यूमर। जैसे हम नीचे एक बेस देंगे तो ये इंडिकेट करेगा हमारे पास कि ये प्रोड्यूसर्स हैं और साथ में इनके कंज्यूमर्स हैं, लेकिन जो इसका अपेक्स है ऊपर उसको हम टॉप लेवल कंज्यूमर्स दिखाते हैं। इकोलॉजिकल पायरामिड जो है 3 तरह के होते हैं, पायरामिड ऑफ नंबर, पायरामिड ऑफ बायोमास एंड पायरामिड ऑफ एनर्जी। अब इन मोस्ट इकोसिस्टम 3 pyramids आर अपराइट एक्सेप्ट इन सम केसेस। नॉर्मली ये पायरामिड जो है ये नॉर्मली अपराइट होते हैं कुछ केसेस को छोड़कर। मैं आपको डायग्रामेटिकली यहाँ बता देता हूँ। हमारे पास ये जो पायरामिड है तो आप देखिए यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल, हमने कहा कि पायरामिड्स जो है एक रिप्रेजेंटेशन होता है, पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम
पायरामिड्स के, दीज आर पायरामिड्स। ये जो बेस है ये रिप्रेजेंट करता है प्रोड्यूसर, दूसरी जो लेवल है ये प्राइमरी कंज्यूमर, तीसरी जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये टॉप कार्निवोर्स। आप देख रहे हैं प्रोड्यूसर ज़्यादा है यहाँ, प्राइमरी कंज्यूमर कम है, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम है, और टर्शियरी कंज्यूमर सबसे कम है। यहाँ पर नंबर्स की बात अगर हम देखेंगे तो आप देखिए प्राइमरी कंज्यूमर की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी कंज्यूमर, और टॉप कार्निवोर्स आप देखते हैं 3 दिखाया है तो बहुत कम होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे ये पायरामिड ऑफ बायोमास है, मटेरियल के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा बायोमास प्राइमरी कंज्यूमर्स का होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। देन कम्स पायरामिड ऑफ एनर्जी के हिसाब से भी प्रोड्यूसर्स की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। सपोज देखो यहाँ 10,000 जूल, प्राइमरी कंज्यूमर 1000 जूल, इनकी 100 जूल, वही 10% जो लिंडेमैन 10% लॉ मैंने आपको बताया, तो 10,000 का 10% हो गया 1000, 1000 का 10% हो गया 100, 100 का 10% हो गया 10, 10 का जो है ऊपर तो है नहीं कोई, ये टॉप कार्निवोर है। इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम मैंने बताया कि ये जो पायरामिड्स हैं ये अपराइट होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया। पायरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन ओशन इकोसिस्टम। अगर ओशन इकोसिस्टम हम लेंगे तो ये बायोमास का जो पायरामिड है ये उल्टा होता है, क्योंकि अ स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ जू प्लैंक्टन। इसमें जो स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन है ये सपोर्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ जू प्लैंक्टन। The pyramids of number can be inverted when, say, a large tree is eaten by small insect. अब pyramid of number उल्टा हम कब दिखाएंगे, जब मान लो एक बड़ा पेड़ जो है उसको इंसेक्ट खा जाते हैं। However, the pyramid of energy is always upright. ये मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है आपको कि जो एनर्जी का pyramid होता है वो हमेशा सीधा दिखाया जाता है। और ट्रॉपिक लेवल represents a functional level and not a single species as such. So limitations क्या हैं इकोलॉजिकल पायरामिड्स की, ये जो है do not take into account the same species belonging to more than one tropic level. एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल की जो है स्पीशीज़ को कंसिडर नहीं करता है, और इट assumes a simple food chain that almost never exists in nature. It does not explain, ये food web को explain नहीं करता है. Saprophytes are not given a place in ecological pyramids. Thank you very much.